اب اس حکیم کا کیا کہنا، اب اس طبیب کا کیا کہنا، اب اس ڈاکٹر کا کیا کہنا؟ اس کی ماں کہتی ہے بیٹے میں معافی چاہتی ہوں، تو اب جا سکتا ہے، اب میرا بیٹا مر گیا، اب تجھے بلا کر کیا ہوگا، اب تجھے اپنے گھر میں بلا کر کیا ہوگا، میرا بیٹا اس دنیا سے جا چکا، اب کیا کہنا؟ حضرت بیمار ضرور عابدین کہتے ہیں اے اپنی جا جب یہاں تک آ گیا ہوں تو اپنے گھر میں بھی لے لے، اپنے گھر میں مجھے نہیں بلائے گی؟ اس کی ماں کہتی ہے، وہ ضعیف عورت کہتی ہے ٹھیک ہے نوجوان آ جا میرے گھر میں، آئے پانی دی کھانا دی، پانی کو دیکھ کر بیمار ضرور عابدین ہونے لگے، کیونکہ کربلا کا بار بار وہ منظر امام ضرور عابدین کی نظروں کے سامنے ہو جاتا، جب پانی لایا جاتا بیمار ضرور عابدین سوچنے لگتے علی اصغر بھی پانی کی طرف رہے تھے، پورا اہل بیت پانی کے لیے ترس رہے تھے، میرے پاس پانی آ رہا ہے، حضرت بیمار ضرور عابدین رونے لگے، پھر کہتے ہیں اچھا تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ جب لے کر جاتی ہے وہ عورت تو کیا دیکھتی ہے اس کا بیٹا مرا ہوا ہے، اس کے جسم پر اس کے لاش پر کپڑا بچھا ہوا ہے، اس کی بہن اس کے سرہانے کے جانب رو رہی ہے بیٹھ کر، اے میرے بھائی تو ہی ایک میرا بھائی تھا، تو ہی ایک میرا بھائی تھا، تو ہی ایک ہم لوگ کا سہارا تھا، تو بھی چلے گیا، اب کیا ہوگا ہم لوگ کا، اب ہم لوگ کس کو بھائی کہیں گے؟ حضرت بیمار ضرور عابدین جب پہنچے اس لاش کے پاس، اس لڑکا جو انتقال کر چکا تھا اس کے بعد جب پہنچتے ہیں بیمار ضرور عابدین نے کہا اے نوجوان شخص تو کتنا نادان ہے، اپنی بہنوں کو ایسا اڑایا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو ایسا اڑایا جاتا ہے، اتنا سننا تھا وہ جو مردہ تھا کھڑا ہو کر زندہ ہو گیا اور امام ضرور عابدین کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر فضائل کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت بیمار ضرور عابدین کے قدموں میں آ کے گر گیا، حضرت بیمار ضرور عابدین کے قدموں میں آ کر گر گیا، وہ زندہ ہو گیا، اتنا بس کہنا تھا اے نادان اپنی بہنوں کو نہیں اڑایا جاتا، وہ کھڑا ہو گیا، جو مر چکا تھا جس کی امید نہیں تھی وہ کھڑا ہو گیا، قدموں میں آ گیا۔ اب امام ضرور عابدین نے اس ضعیف عورت سے اجازت لیتے ہیں اے مائی مجھے اجازت دے میں چلوں اپنے قافلے والوں کے ساتھ۔ اس نے حضرت بیمار ضرور عابدین کی دامن کو تھام لی اور کہتی ہے نوجوان شخص، اے نوجوان شخص میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اس کا جواب جب تک نہیں دے گا تب تک میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ حضرت بیمار ضرور عابدین نے کہا او مائی کیا بات ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ وہ کہتی ہے وہ جو 72 سر نیزے پر تھے یزیدی لے کے جا رہے تھے وہ کس کے ہیں؟ وہ کس کے تھے؟ کہتے وہ میرا پورا گھرانہ تھا، اس میں میرا بھائی ہے، اس میں میرا چچا ہے، اس میں میرے باپ ہے، اس میں میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ سب ہمارے خاندان کے سر تھے جو نیزے پر تھے۔ وہ خاتون کہتی ہے تو ایک میرا بیٹے کو زندہ کر دیا تو تم کیا 72 کو نہیں زندہ کر سکتا؟ تم 72 کو نہیں زندہ کر سکتا؟ تو میرے بیٹے کو زندگی دے دی، تو چاہے گا تو تیرا 72 پورا جو شہید ہو چکا ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت بیمار ضرور عابدین کہتے بھائی یہاں پہ تجھے اس کا جواب نہیں ملے گا، میرے ساتھ چلنا ہوگا، میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ حضرت بیمار ضرور عابدین لے کر گئے جہاں پر امام حسین کا سر تھا نیزے پر، امام حسین کا سر کا چہرہ، امام حسین کا چہرہ سیدھا تھا، بیمار ضرور عابدین اس چہرے کے پیچھے تھے اور وہ خاتون بھی تھی، وہ ضعیفہ بھی تھی۔ حضرت امام ضرور عابدین نے اپنے بابا حسین سے کہتے بابا حسین، اے بابا حسین آپ جو پورے سفر سے ہمیں قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے آج پھر ایک مرتبہ سنا دیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں بیمار ضرور عابدین؟ اے بابا حسین آپ جو سفر میں قرآن کی آیتیں سنا رہے تھے وہ یہاں پر بھی ایک مرتبہ ہو جائے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت امام حسین کا سر آگے تھا اور امام ضرور عابدین پیچھے تھے، اتنا کہنا تھا امام حسین کا سر ان کے سامنے ہو جاتا ہے، ان کے چہرے کی طرف ہو جاتا ہے، ان کی رگ جنبش کرنے لگتی ہے اور جب سنتے ہیں ان کی زبان سے آواز آتی
आती है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। इतना सुनना था इमाम ज़रकाश्ती ने कहा ऐ खातून जिंदा उसे किया कहा जाता है, जिंदा उसे किया जाता है जो मर चुका होता है, जो जिंदा होता है उसे फिर जिंदगी देने के क्या फायदा। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम ज़रकाश्ती ने कहा जो मर गया उसे जिंदा किया जाता है, ये तो जिंदे हैं। ये सीधी देखे कि ये तो नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत ही कर रहे, आखिर हमने शहीद किसको किया, हमने कत्ल किसको किया। ये सीधी भी तंग है, ये सर कटने के बाद की करामत है, तो सर ना कटा होगा तो कैसी करामत नहीं होगी। इमाम हुसैन सर कट गया तब भी करामत दिखा रहे हैं और उनका बेटा भी करामत दिखा रहा है, मरा हुआ बच्चे को जिंदा कर दिया। फिर वो काफिला आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद कूफे के सरजमीन पर पहुंचे, कूफे के सरजमीन पर पहुंचे, लोग तमाशाई बनकर देख रहे थे। मैंने जो आपको कल बताया एक हजरत बीबी शिरीन की जिन्होंने खाना पानी लाकर दी, उसी तरीके से एक और वाक़या है। हजरत इमाम ज़रकाश्ती का ये काफिला चल पड़ा। जब कूफे में पहुंचा, एक खातून थी जो नौजवान थी, वो अपने छत पर खड़ी थी और काफिले वाले को देख रही थी। देखते देखते एक बच्ची पे नजर पड़ती है और बच्ची का उम्र 6 साल। उस बच्ची का चेहरा मुरझाया हुआ है, वो गुलाब सा चेहरा वो मुरझाया हुआ है। बीबी ज़ैनब बीवी वो समझ गई है खातून कि लगता है ये मजलूम है, और वो कोई बच्ची और नहीं था बल्कि हजरत सकीना थी। वो हजरत सकीना थी, देखती है कि मजलूम है, चेहरे पे उदासी है और चेहरा मुरझा चुका है। वो गई अपने घर में, खाना बनाती है, पानी लेती है, कपड़े लेती है और ले जाकर हजरत सकीना की बारगाह में पहुंच जाती है और कहती है ऐ मेरी बच्ची इसको कबूल कर लो। ऐसे बीबी ज़ैनब देख रही थी और आ गई उसके पास और कहती है ऐ खातून तू कौन है, यहाँ पर तो अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है, तो इतना किसके लिए कर रही है। तो कहती है कि देखो बात दरअसल ये है कि हम बहुत मालदार थे, हमारे बाप ने हमें बहुत अच्छी तरबियत दी थी, हमारे घर में इस्लामिक कल्चर थे। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने पूछ लिया ऐ मेरी बेटी ये बता कि तुझे दुनिया पसंद है या आखिरत पसंद है। उस खातून कह रही है हज़रत ज़ैनब से मेरा बाप पूछ लिया कि तुझे दुनिया पसंद है या आखिरत पसंद है। इतना सुनना था क्योंकि जो मुझे तरबियत मिली थी, जो नबी का शान था, जो नबी की तरबियत में पली थी, उसी तरबियत पर मैंने बोल दी कि बाबा जान मुझे दुनिया नहीं बल्कि आखिरत पसंद है। इतना कहना था, उसका बाप कहता है कि ये दौलत छोड़ दे, ये शान और शौकत छोड़ दे, ये अय्याशी छोड़ दे और तू चले जा फातिमा ज़हरा के घर की नौकरानी बन जा। अगर वहाँ पे नौकरानी की तो फिर तेरी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवर जाएगी। फिर वो कहती है मैं हज़रत फातिमा ज़हरा के घर पे काम करती रही। उसके घर पे 2 बेटे भी थे जिनका नाम इमाम हसन था, इमाम हुसैन था और एक बच्ची थी जिसका नाम हज़रत बीबी ज़ैनब था। वो तीनों के साथ मैं पली बढ़ी। फिर उसके बाद मेरे बाप ने मेरा रिश्ता कर दिया और रिश्ता जिससे किया वो शख्स कूफा का है, कूफा का था। फिर मेरी रुखसती हो गई, मेरी रुखसती हो गई फातिमा ज़हरा के घर से, अपने बाबा के घर से रुखसती होने लगी। तो बीबी फातिमा ज़हरा से मैं पूछी ऐ मेरी आका, ऐ मेरी मालिका, ऐ फातिमा ज़हरा, ऐ नबी की नवासी, मैं अगर कयामत का मैं आखिरत को तैयारी करूं, आखिरत को पसंद करूं तो उसके लिए क्या करना होगा। हज़रत फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया तुम मजलूमों को खाना खिलाना, जब तुम्हें मजलूम दिखे खाना खिलाना, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी, आखिरत में तुम्हारी कामयाबी कदम चुमती हुई नजर आएगी। तो वही बातें याद करके मैं मजलूम बच्ची को देखी, इसलिए मैं खाना पानी लेकर आ गई। तो बीबी ज़ैनब कहती है खातून तूने मुझे पहचाना नहीं, जिस घर की तू बात कर रही थी वही घर की मैं हज़रत ज़ैनब हूँ, जिस घर के हुसैन की बात कर रही थी
सर पे जो नेज़े पे जो सर दिख रहा है वो हुसैन इब्ने अली का है। इतना सुनना था, वो बेहोश होकर गिर गई, बेहोश होकर गिर गई। जरा सोचो, इमाम हुसैन के चाहने वाले इमाम हुसैन के गम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इमाम हुसैन का गम इतना है, इमाम हुसैन को इतना तकलीफ लोगों ने दिया, उसका कोई बयान ही नहीं कर सकता, उसको कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो जिंदा बनकर एक लाश हो जाएगा अगर सुन लेगा तो। हजरात फिर कूफे से वो काफिला चला, दमिश्क के सरजमीन पर पहुंचा, यानी उनके शाम में पहुंचा। तो मैंने आपको बताया कि उनके शाम को सजाया गया, उनके शाम को सजाया गया। वहाँ पे ढोल ताशे बजा रहे थे, ये मैं कल आपको बयान कर चुका हूँ, इसलिए आज वो नहीं बयान करूंगा, उससे आगे गुफ्तगू करूंगा। दमिश्क के सरजमीन पर जब पहुंचे, यजीद जो था वो कहता है, वो यजीद जो दमिश्क और उनके शाम में लोगों को पता चलने लगा कि लोगों को पता चल रहा है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन और अहले बैत के घराने को यजीद ने कैद कर रखा है और कैद खाने में डाल रखा है। ये उसको जब पता चला कि लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे, उसने सोचा अगर मैं ऐसे ही उनको कैद खाने में रखा रहा तो फिर मेरी हुकूमत चली जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी। फिर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को बुलाता है और कहता है, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो तुम कहोगे उस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसे इमाम ज़ैनुल ने कहा, तू धोखेबाज है, तू जालिम है, तू कभी बात में तेरे बात में कभी भरोसा नहीं है, तू मेरी बात को मान ही नहीं सकता। वो कहता है, ऐ इमाम ज़ैनुल कहो तो सही, क्या बात है, मैं हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ। इमाम हुसैन के साहबजादे इमाम ज़ैनुल ने कहा, ऐ यजीद, मेरे बाप के कातिल को मेरे हवाले कर दो, जिसने मेरे इमाम हुसैन को, मेरे बाबा को कत्ल किया, उसको मेरे हवाले कर दो, मैं उससे बदला दूंगा। और कहते हैं कि हम सबको आजाद कर दो, और कहते हैं कि हमें मदीनतुल मुनव्वरा सही सलामत भेज दो। उसके बाद कहते हैं कल जुमा है, जुमा के दिन खुतबा मैं दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा इमाम हुसैन को जिसने शहीद किया, कत्ल किया, लानत हो उस पर। कौन कहा? यजीद। यानी अब कहते हैं कि गिरगिट के जैसा इंसान बदलते हैं, उसी तरीके से यजीद गिरगिट के जैसा अपना शक्ल बदल रहा था और दगा दे रहा था और कह रहा था कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन, लानत हो जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया, लानत हो। उसने ऐलान किया कि जो करबला में थे वो सबको बुलाया गया, दरबार में सब आ गए, इब्ने साद आया, शिमर आया, और भी जो थे वो भी आ गए। वो कहता है यजीद इब्ने साद से कि तूने इमाम हुसैन को कत्ल किया, तूने इमाम हुसैन को शहीद किया। इब्ने साद ने कहा बेवकूफ है, नबी के नवासे को शहीद करेंगे, नबी के नवासे को मारेंगे, नबी के नवासे को शहीद करेंगे। कहता है इब्ने साद, लानत हो जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया। उसने भी अपना इरादा बदल लिया, उसने भी अपना गिरगिट के जैसा चेहरा बनाने लगा। उसके बाद शिवर से कहता है तूने कत्ल किया। शिवर ने भी कहा कि हम पागल हैं, नबी के नवासे को शहीद करेंगे। नबी के कांधे पे बैठ कर सवारी करते थे, नबी अगर मिंबर पे होते थे तो उठकर मिंबर से हुसैन को उठा लेते थे, क्या हमें पता नहीं है, हम शहीद करेंगे। शिवर ने भी कहा लानत हो जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया। वो सब कहने लगे। फिर हुसैन ने कहा फिर किसने कत्ल किया, फिर किसने शहीद किया? शिवा फिर बोल उठा, उसने शहीद किया जिसने फौजियों को भेजा, सिपाहियों को भेजा, करबला के मैदान में जाओ। उसने शहीद किया जिसने हजरत इमाम हुसैन के घरानों पर नहरे फुरात में पहरा लगा रखा था। उसने शहीद किया जिसने खुतूत भेजकर करबला में बुलाए थे। वो कहता वो कौन है? शिमर ने कहा वो तो तुम ही हो यजीद, तुम ही हो, तुम ही ने तो पूरा का पूरा नक्शा बनाया था कि कहाँ पे इमाम हुसैन को बुलाना है, कहाँ पर क्या करना है। इतना मुद्दा था। यजीद सबको भगा देता है, सब मेरे महल से निकलो, सब मेरे महल से निकल जाओ, तुम सबका काम नहीं है। शिमर ने जाते जाते कहा अब हम लोगों से काम क्या है, अब हम लोगों से काम क्या है? जो काम था करवा लिया, जिस कुर्सी की लालच थी वो कुर्सी तुम्हें मिल गई,
अब लालच की, अब क्या हमसे काम करवाओगे? अली अकबर को शहीद करवा दिया, कासिम को शहीद करवा दिया, इमाम हुसैन को शहीद करवा दिया, अब तुम्हें क्या काम है? और यजीद 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर दिया, दुनिया से चला गया। और उसका बेटा जो 18 साल का था वो तख्त को संभाला, और तख्त पर उसने बैठा नहीं, 40 दिन तक उसने हुकूमत की। लोग कहते थे, अबू मैया कहते थे, ऐ साहबजादे यजीद के, उनका नाम क्या है मौलाना का? वो कहता है यजीद का बेटा कि मेरा बाप जालिम था, मेरा बाप जाबी था, मेरा बाप जब्बार था, मेरे बाप इमाम हुसैन को शहीद किया, हम उस कुर्सी पर क्यों बैठे जिस कुर्सी के नीचे अली अकबर का खून हो? उस कुर्सी पर हम क्यों बैठे जिस कुर्सी के नीचे कासिम का खून बह रहा हो? उस कुर्सी पर हम क्यों बैठे जिस कुर्सी के नीचे अली अकबर का मासूम खून बह रहा हो? उस कुर्सी पर हम क्यों बैठे जिसके अब्बास अलमर्दान के बाजू हो? हमें इस कुर्सी का जरूरत नहीं है, उसने छोड़ दिया। फिर यजीद, सुबह हुआ, जुमा का दिन था, यजीद ने कहा कि ठीक है तुम खुतबा दोगे। जब यजीद दमिश्क के जामे मस्जिद में पहुंचा तो क्या देखता है, वहां पर दमिश्क के लोगों से पूरा खचाखच पूरा मस्जिद भरी हुई, जामा मस्जिद थी, पूरा भरा हुआ है। उसने देखा अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अगर ये तकरीर कर दिए तो फिर हमारी हुकूमत चली जाएगी। उसने एक शामी आदमी को हुक्म दिया तो तुम जाकर खुतबा दो और तुम मेरी शान में कसीदे पढ़ना। वो कसीदे पढ़ने लगा खुतबे मिंबर पर जाकर और कहने लगा यजीद अच्छा है, ये है, वो है, सब करने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए और यजीद की तरफ मुंह कर कहता है यजीद तू अभी तक दगाबाजी करना छोड़ा नहीं, तू बेवफाई कर रहा है। तूने वादा किया था मैं तुम्हें मौका दूंगा मिंबर रसूल पर और तुम खुतबा देना, और तुम मुकर गया। अब सारे लोग जब ये आवाज सुने तो कहने लगे शामी को उतारो और इस नबी के घराने के फर्जंद को बैठाओ, उनकी हम खुतबा सुनेंगे, उनकी हम वाज सुनेंगे, उनकी तकरीर सुनेंगे। इतना सुनना था, शामी आदमी को वहां से हटाया गया और यजीद ने कहा ठीक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा दिया कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नाना है। ऐ यजीद बता क्या तेरे मोहम्मद रसूल नाना है? क्या तेरे नाना है? अगर तू कहता मेरे है तो फिर तू झूठा है, ये नाना हमारे हैं। सारे सब बयान होने लगे और कहने लगे कुरान में आयतें हमारे लिए उतरी है, क्या तेरे उतरी है? जब इतना सुना तो सोचने लगा कि हंगामा हो जाएगा। उसने मुअज्जिन को इशारा किया अजान दो। उसने अजान देना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश हो गए अजान सुनकर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इतना सुनते जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे आता है उस मुअज्जिन तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ऐ मुअज्जिन तुझे इस मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता यहीं पे खामोश हो जा, यहीं पे खामोश हो जा। ये किसका नाम है? ये मेरे नाना का नाम है। ये किसका नाम है? इमाम हुसैन के नाना का नाम है। इसी नाना के नवासे को यजीद ने कत्ल किया, यजीद ने शहीद किया। यजीद सुन ना पाया, उसको रहा ना गया, वो वहां से कल्टी मार कर चला गया। सोचा कर यहाँ पे रहूंगा तो हंगामे होंगे, वहां से चला गया अपने महल में। और महल में जाने के बाद सोचा अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगर यहाँ पे रहे तो फिर हंगामा होएगा, मेरी हुकूमत चली जाएगी। उसने कहा अब इनको मदीना के लिए रवाना कर दिया जाए। उसने नौमान बिन बशीर की क़यादत में सहाबी रसूल थे जो कुफा के पहले गवर्नर थे, माजूर कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद उनकी जगह पे संभालने लगा। नौमान बिन बशीर को बशीर की क़यादत में इमाम हुसैन का काफिला चलने लगा, क्योंकि 72 गए थे, सिर्फ 14 बच गए थे, वो काफिला चलने लगा। नौमान बिन बशीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते हैं ऐ मेरे इमाम मैं क़यादत कर रहा हूँ लेकिन आप जो कहेंगे वही होगा। आपकी बात मानी जाएगी, मैं क़यादत नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं, आप जो कहेंगे वही मानी जाएगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अच्छा अच्छी बात है तो चलो पहले करबला के मैदान में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने सबकी लाशों को ऐसी छोड़ कर आए हैं, उनकी दफन किया जाएगा, उनकी जनाजा पढ़े जाएंगे, उसके बाद माजी ले जाएंगे। करबला में गए, वहाँ पे जनाजा पढ़े, तब वहाँ पे लाशों को दफनाया गया। उसके बाद मदीने के लिए जब रवाना हुए, जब मदीने में पहुंचे तो मदीने के लोग कहते हैं मदीने में सिर्फ 2 ही मरतबा लोग ज्यादा रोए हैं। एक मरतबा
मोहम्मद रसूलुल्लाह को साल होने के बाद और एक मर्तबा जो रोए हैं इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला जब आया, काफिला जब लुटा हुआ मदीना आया तो लोग दहाड़े मार कर रोने लगे। हजरत इमाम हुसैन की बेटी हजरत सुगरा आई, अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहती है, भाई मेरा भाई अकबर कहाँ है? तो कहते हैं शहीद हो गए। फिर ज़ैनुल आबिदीन से छुड़ा कर जाती अपने फूफी की बारगाह में और कहती है, फूफी ज़ैनब मेरा अलअस्कर भाई कहाँ? उन्होंने भी कहा शहीद हो गए। फिर आती है अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, फिर कहती मेरे भाई कासिम कहाँ है? तो कहते शहीद हो गए। सबकी नामें गिनाते जाती, सब कहते जाते शहीद हो गए। वो हज़रत सुगरा कहती है, क्या करबला में इतनी आसानी से इतने सस्ते में मौत मिल रही थी? करबला में इतना सस्ता मौत मिल रहा था कि सब वहीं पे शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। वहां पे सब लोग रोने लगे। उसके बाद एक कूफा से मुख्तार सक़फ़ी उठा, उसने सब यजीदियों को चुन चुन के मारा। जिसने भी इमाम हुसैन को शहीद किया उसको भी मारता है। फिर उसके बाद जिसने इमाम हुसैन के शहादत होने के बाद खुशी मनाया था उसको भी मारता है। उसके बाद जिसने भी उनके जश्न मनाया था इमाम हुसैन के शहादत पर उसको भी मारता है। जिसने भी इमाम हुसैन के शहादत में हिस्सा लिया था, या हंसकर या मुस्कुराकर या तलवारें चलाकर या तीरें चलाकर या पत्थर बरसाकर काफिले वालों पर सबसे बदला लेने के बाद जब उमरुल्लाह इब्न ज़ियाद को दौड़ाता है मारने के लिए, तो भागता भागता क्या देखता है, खेमा है उसमें चिराग जल रहा है। वो भागता भागता उस खेमे में घुस गया। जब देखता है उस खेमे में एक नूरानी शक्ल वाले हैं और कोई और नहीं बल्कि बीमार ज़ैनुल आबिदीन थे। इब्न ज़ियाद जब देखता है कहता है पानी मिलेगा, मैं बहुत प्यासा हूँ। उन्होंने एक कटोरा पानी दे दिया। फिर कहता और पानी चाहिए, उन्होंने फिर दे दिया। फिर कहता और प्यास लगी और पानी चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरा मशकिया उठाकर दे दिए। कहते ये ले पानी पी, अपनी प्यास बुझा। उसने जब पानी पी लिया तो कहता है, ऐ ज़ैनुल आबिदीन क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? तूने मुझे पानी पिलाया, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं तुझे पहचानता हूँ, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसने कहा नहीं, आपने पहचाना नहीं, अगर पहचानते तो मुझे पानी नहीं पिलाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वो तेरा करतूत था जो करबला में मेरे घराने पर पानी बंद किया था, लेकिन ये हमारे घर की रीत और रवाज है, अगर दुश्मन भी तेरे दरवाजे पर आ जाए तो कभी प्यासे मत भेजना। और तूने पहले सलाम किया था और कहा था सलाम अलैकुम, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए क्योंकि सलाम एक दुआ है और दुआ हर किसी को नहीं दी जाती और खैरात सबको दी जाती है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलाम दुआ हर किसी को नहीं दी जाती और खैरात कोई भी आए ले जाए, दुश्मन हो कोई भी हो, कोई भी हो खैरात लेकर जाए, लेकिन दुआ हर किसी के लिए नहीं है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद कभी हंसे नहीं, हमेशा रोते रहे। रोते रोते उनकी हालत ये हो गई, आंखों से जो आंसू गिरते थे वो आंसू खुश्क हो गए, वहां से खून के आंसू गिरने लगे। जरा सोचो, एक शख्स था जो बाजार में गोश्त बेच रहा था काट काट के, कसाई था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखता है आते, उसने तुरंत कपड़ा डाल दिया उस गोश्त के लोथड़े पे। एक शख्स ने कहा ऐ शख्स तू इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखकर इस पे कपड़ा क्यों डाल दिया? तो कहता है कि तुम नहीं जानते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब आते हैं मेरे गोश्त को देखते हैं तो मुझसे कहते हैं ऐ नौजवान ऐसे ही गोश्त का लुथरा करबला के मैदान में मेरे घरानों की पड़ा था, इस गोश्त के लुथरे को मुझे मत दिखाया कर, जब दिखाता है मुझे याद आ जाता है। ऐसे ही मेरे घराने के लोगों का कत्ल हुआ और ऐसे ही गोश्त इधर उधर बिखरा हुआ था, इसलिए मत दिखाया। जरा सोचो। और इब्न ज़ियाद कहता है कि पहचान नहीं करते, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि तूने मेरे पूरे घराने को लूटा, तूने मेरे पूरे घराने को शहीद किया, तुझे कौन भूल सकता है? तुझे कोई नहीं भूल सकता। मेरा तो बात ही छोड़ो। ये हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
جو کربلا سے آنے کے بعد ہمیشہ روتے رہے اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہے۔ حضرات یہی تھی گفتگو کربلا کے بعد اور بھی سارے واقعہ ہے، انشاءاللہ اسی پہ اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں اور آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اہل بستی کا شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور بالخصوص ہمارے اہل کمیٹی کے ممبران کیا بہت شکر گزار ہوں، ان سب نے موقع دیا۔ اور ایک محرم سے لے کے ابھی تک جتنے بھی تقریریں ہوئی، اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، کیونکہ توبہ ایسی وظیفہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی جس نے توبہ کر لی گویا کہ اس نے ابھی اپنے ماں کے شکم سے نکلا، یعنی وہ ہر گناہ سے پاک ہے۔ جس نے توبہ کیا اس کا مقدر چمک گیا۔ آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر بشر حافی نے توبہ کیا شراب پینے سے، وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ اسی طریقے سے فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، جو ڈاکوؤں کے رہنما تھے، وہ بھی توبہ کرتے ہیں پھر اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ایسی بہت سارے فرشتے ہیں جنہوں نے توبہ کر اللہ والوں میں اپنی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ توبہ کرتے رہے، توبہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، کیونکہ انسان ہے مٹی کا پتلا، غلطی ہو جاتی ہے، زبان پھسل جاتی ہے۔ اس لیے ایک محرم الحرام سے ابھی تک جتنی بھی تقریریں ہوئی کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ حضرات بھی پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے بھی گناہ مٹ جائیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ باقی رضا کی کوئی ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے